handicraft. Handicraft of amalgamation of the old things of crafted for the women. Many states in India have artistic and skill proficiency. So first one is glassware. The glassware is the making of the glass. First reference of Mahabharata and Satapaksha Brahman and the कांच और कांच से ही बनता है. So glass industry is the Brahmaputri, Kolhapur and Maharashtra. And we can see Maski, which is Chalcolithic site of Deccan, and medieval period Mughal gave the Sheesh Mahal, and glass bangles are the most exposure one made the Hyderabad, Churika Jodas and the Panchora or the Tikuli. Now next is the handicraft on clothes in tie and dye, which is the bandage made, and it is Leharia which is in Jaipur and Jodhpur. Ikat is also known as, which is this dyeing, Telangana, Odisha. And kalamkari which is used hand painting of the fabric, and kalamkari in the Andhra Pradesh. Kalamkari in the Andhra Pradesh. Okay, and one of the fabric is batik art, we can say. So we use in the batik art the kalamkari in the Andhra Pradesh. Madhya Pradesh and West Bengal also use the batik art. And tanchoi weaving is said to be the Chinese inspiration, and that have to come to the Surat and Gujarat. So tanchoi weaving that was in the Surat and Gujarat. Okay, and Jamdani sarees, which is in West Bengal. Jamdani, and it is in West Bengal. Jamdani in the West Bengal. And now I am discussing about some traditional regional sarees. Okay, so first is Pochampalli, very important. Pochampalli is in Andhra Pradesh. Patola sari, Patola is in Gujarat. Baluchari is it is a silk sari which is in West Bengal. Jamdani sari is in the West Bengal. It is transparent woven pattern. Tanchoi, it is in Varanasi. And Chanderi, it is in Madhya Pradesh. Ikat, that was in Karnataka. Tant, that was in West Bengal. Nawari, that was in Maharashtra. Nawari, that was in Maharashtra. And Nawari is a single yard sari. Kastakari. Bomkai, that was in Odisha. That was in Odisha. It is in Odisha. Silk and cotton sari. Konrad, it is in Tamil Nadu. So Bomkai, which is in Odisha, it is silk and cotton embroidery. Konrad sari, which is fabric, usually have strip checks, and that was in Tamil Nadu, Konrad. And Bomkai sari, it is in Odisha, and Konrad in Tamil Nadu. Kosa in Chhattisgarh. Pathani in Maharashtra, and Kalamkari, it is in Andhra Pradesh. Kalamkari, very important, which is in Andhra Pradesh. Pochampalli is also in Andhra Pradesh, and Kalamkari is also in Andhra Pradesh. Kasavu in Kerala. It is in Kerala, and Dabu, it is in Rajasthan. Now next one is ivory crafting. Ivory crafting is the Hathi Daat. Hathi Daat is the which is we found in Harappan civilization,
Ivory comb from Takshashila. West Bengal is a very important, beautiful art of Amberi Hathi. Amberi Hathi. Amberi Hathi. And this Amberi Hathi we can found in West Bengal also. Okay. केरला में पेंटिंग होती है आइवरी में, जोधपुर में बेंगल्स, जयपुर में जाली वर्क होता है. ठीक है. नाउ टेराकोटा ब्रिक्स होती है, ये सिरेमिक क्ले होता है. ठीक है. सो टेराकोटा विच इज़ बैग्ड अर्थ, इट इज़ पंचमुरा हाउस, बंकुरा हाउस ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में इसका बनता है आर्किटेक्चर. सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी जो है ये गुची भी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? गुची. एंड इट इज़ पायजामा बीदरी वर्क भी होता है. ठीक है. जो कि कर्नाटका में होता है. सिल्वर ज्वेलरी फिलीग्री भी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? फिलीग्री. फिलीगिरी. एंड दिस फिलीग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बीदरी वर्क ऑफ कर्नाटका. नाउ नेक्स्ट वन है क्ले और पोट्री वर्क. नेक्स्ट वर्क क्या है? क्ले और पोट्री वर्क. क्ले और पोट्री का वर्क जो होता है ये मेहरगढ़ में होता था. क्ले और पोट्री का वर्क मेहरगढ़ में होता था. ये होता है रेड एंड ब्लैक पोट्री भी बोलते हैं इसको. ठीक है. एंड मोस्टली ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर भी होता है. और इसमें होता है ग्लेज्ड पोट्री. सबसे पहले खुर्जा पोट्री बोल सकते हैं जो कि यूपी में फेमस है, खुर्जा. दूसरी है ब्लैक पोट्री जो कि यूपी में है, आजमगढ़. ग्लेज टाइल्स जो हैं वो चुनार में है. ठीक है. ब्लू पोट्री जयपुर में है, जयपुर में है जो कि ब्लू पोट्री फेमस है. कागजी पोट्री जो है वो अलवर में है, और कागजी पोट्री जो है वो अलवर में है. और पोखराम जो है पोखरन में है. ठीक है. फिर है दुलगेट पोट्री. दुलगेट पोट्री जम्मू कश्मीर में है, दलगेट बोलते हैं, डलगेट नाम से फेमस है. डल कारीगरी जो है वो तमिलनाडु में होती है. कारीगरी कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है. और सुरई जो है ये वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है. और ब्लैक पोट्री जो है ये मणिपुर में भी होता है और उखरुल में भी होता है. और गोपी चंदन जो है सौराष्ट्र में फेमस है. सौराष्ट्र में क्या है? गोपी चंदन, गोपी और चंदन. ठीक है. फिर है ब्रॉन्ज क्राफ्ट. क्या है? ब्रॉन्ज क्राफ्ट. ब्रॉन्ज क्राफ्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली मत्स्य पुराण और रास रत्नाकर में था. इसमें तामपत्र और कंचनतल पंचपत्र भी होता है. तो रेयर जैन इमेज जो है वो कर्नाटका में पाई जाती है. कर्नाटका में रेयर जैन इमेज के आइकन्स पाए जाते हैं. और डोकरा आर्ट जो है वो ओडिशा और वेस्ट बंगाल में, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में क्या पाई जाती है? डोकरा आर्ट. डोकरा आर्ट कहाँ पाई जाती है? ओडिशा और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है. पहलदार लैम्प जो है वो जयपुर में पाए जाते हैं. पहलदार के जो लैम्प है वो कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में पाए जाते हैं. और पेमबर्थी क्राफ्ट ये तेलंगाना में है. पेमबर्थी क्राफ्ट कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है. ठीक है. तो ये क्या है? सारा ब्रॉन्ज क्राफ्ट है. जैसे गाजा तांडव मतलब शिव तांडव की मूर्तियाँ होती है वो केरला में मिलती हैं. रेयर जैन इमेजनरी कर्नाटका में है. डोकरा कास्टिंग ओडिशा वेस्ट बंगाल में है. और पाहलदार लैम्प्स जो है वो जयपुर में है. और पेमबर्थी क्राफ्ट होती है जो कि शीट मेटल से या ग्रास पर बनाई जाती है. चैरियट्स या टेम्पल होते हैं पेमबर्थी में. ये होता है वारंगल और तेलंगाना में. अब एक मेटल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बादला. अब बादला क्या होता है? ये विच इज़ सेमी सर्कुलर राउंडेड, मारवाड़ रीजन में कुछ बनाते हैं. इसको कटिंग लाइंस होती हैं, स्केचिंग्स होती हैं, बारीक काम भी बोलते हैं इसको. और इसको नक्काशी भी बोलते हैं. ये नक्काशी या फिर तारकशी या कोफ्तगिरी. और ये होता कहाँ है? राजस्थान में. लेदर प्रोडक्ट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली जयपुर जोधपुर में मोजड़ी मिलती है, कानपुर में मिलती है.
और कोल्हापुर की चप्पलें हैं, ठीक है। और वुडन वर्क की अगर बात करें तो वुडन वर्क जो है वो कहाँ कहाँ होता है, देवदार वुड से भी होता है, वॉलनट से भी होता है। वुडन वर्क बेसिकली कहाँ होता है, कश्मीर में होता है और गुजरात में होता है, ठीक है। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, रक्त चंदन, रेड सैंडलवुड। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, रेड सैंडलवुड जो होता है, रक्त चंदन। इससे क्या बनाते हैं, वेरियस वुडन आइटम्स बनते हैं। फिर कर्नाटका में सैंडलवुड से बनाते हैं, सैंडलवुड इन कर्नाटका, और रक्त चंदन आंध्र प्रदेश में है। फिर केरला में है टीक वुड कहाँ होता है, केरला में होता है, और रक्त चंदन आंध्र प्रदेश में होता है। फिर होता है कुमिसिंग जो है लोकल वुड है, जो कि पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको कि कुमिसिंग कहते हैं, कुमिसिंग। रोहिड़ा जो है वो सिंदूर बॉक्स बनाने के काम आता है। और पंडोरा वुड जो है वो रत्नागिरी महाराष्ट्र में मिलता है, पंडोरा वुड। नाउ नेक्स्ट है टॉय क्राफ्ट। टॉयज़ जो होते हैं वो रेड वुड के बने होते हैं, या फिर तिरुपति डॉल्स भी बोल सकते हैं, तिरुपति डॉल्स, और अंबरी हाथी भी बोलते हैं, अंबरी हाथी और तिरुपति डॉल्स, ठीक है। फिर स्टोन वेयर में मसोनरी होता है एंड क्राफ्टिंग होता है, पॉपुलर इन इंडिया, और इसको जीआई भी बोलते हैं स्टोन वेयर में, ठीक है। एग्जाम्पल है साउथ इंडियन टाउन्स में। मॉडर्न पीरियड जो है, एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर अजंता एलोरा, और संगे मारवाड़, वाइट मकराना के मार्बल भी मिलते थे, संगे रत्तक। एम्ब्रॉयडरी में आएगा फुलकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्ब्रॉयडरी में, और बाग और गोटा राजस्थान में मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज कशीदाकारी होता है, ठीक है, चिकनकारी होता है, चंबा रुमाल भी बनते हैं हिमाचल प्रदेश में, और काथा जो है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है। अब हम कुछ लिस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी को डिस्कस करते हैं। पहला है चिकनकारी कहाँ पर होता है, यूपी में, चिकनकारी। दूसरा है काथा वर्क कहाँ होता है, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। द थ्रेड यूज टू डू दैट इज जनरली ड्रॉन फ्रॉम द बॉर्डर थ्रेड्स ऑफ क्लॉथ इन्वॉल्व डिफरेंट मोटिव्स। फुलकरी कहाँ होता है, फुलकरी होता है पंजाब में। बाग कहाँ है, बाग भी है पंजाब में, सिमिलर टू फुलकरी। जरदोजी वर्क यूपी में है। कशीदाकारी जम्मू कश्मीर में है। आरी वाला भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। मिरर वर्क राजस्थान में होता है, और दरानिया गुजरात में है। दरानिया वर्क जो है वो गुजरात में है। हीर वर्क जो है वो भी गुजरात में है, और गोटा वर्क जो है वो राजस्थान में है, गोटा। और कशीदा बिहार में है, कासूती कर्नाटका में। कशीदा वर्क कहाँ होता है, बिहार में। कासूती वर्क कर्नाटका में है। ये थ्रेड इन्वॉल्व होते हैं जो कि काउंट करते हैं थ्रेड, ठीक है। फिर ये राबारी गुजरात में है, ठीक है। राबारी वर्क कहाँ होता है, गुजरात में होता है। ये एनिमल डेकोरेशन के लिए काम आता है। पिछवई वर्क कहाँ होता है, राजस्थान और गुजरात में होता है। और शमीलानी वर्क मणिपुर में होता है। शामिलानी वर्क कहाँ होता है, ये मणिपुर में होता है। और फिर फूल पत्ती का जो वर्क है उत्तर प्रदेश में। टोडा जो है वो कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। फिर बन्नी वर्क गुजरात में होता है, बन्ना बन्नी ये गुजरात में होता है। बंजारा वर्क आंध्र प्रदेश में। मुकेश वर्क यूपी में। और पीपली वर्क जो है वो पीपली ओडिशा में। और खर्चो भी राजस्थान में, ठीक है। ये सारे के सारे एम्ब्रॉयडरी थी। फ्लोर की डिज़ाइंस के बारे में देखते हैं। जैसे चौक पुराना उत्तर प्रदेश में, और अय्यप्पन डिज़ाइन हिमाचल प्रदेश में। अय्यप्पन डिज़ाइन कहाँ है,
हिमाचल प्रदेश में है। और चौक पुराना, इट इज़ इन पंजाब। मांडना आर्ट इन राजस्थान। साथिया इन गुजरात। रंगोली महाराष्ट्र। कोलम डिज़ाइन साउथ इंडिया में होती है। और हस इन द कर्नाटका। मुगुलू इन द आंध्र प्रदेश। मुगुलू इन द आंध्र प्रदेश। और गोलम इन द केरला। और जोंटी और अरिपाना वेस्ट बंगाल में, और जोंटी जो है उड़ीसा में फेमस है। ठीक है, जोंटी कहाँ फेमस है? उड़ीसा में। और अरिपाना कहाँ फेमस है? वेस्ट बंगाल में। वैसे इसमें से प्रीलिम में से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। मेन इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा? मेंस का बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वैसे अगर छोटा क्वेश्चन देखें तो कलमकारी पेंटिंग रेफर टू क्या होती है? हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल होती है। बांदानी टाई डाई क्या होता है? टाई डाई का मतलब होता है, वाराणसी में ये फेमस है। वैसे क्लोथ पर जो प्रिंटिंग होती है उसको टाई डाई कहा जाता है। और ये कहाँ पर फेमस है? बंदानी जो है ये राजस्थान में फेमस है। विच फॉलोइंग रेस्पेक्ट टू टाई डाई आर्ट फॉर द क्लोथ प्रिंटिंग इज़ नॉट करेक्ट। सो इकत केरला में नहीं होता है। बाकी लहरिया राजस्थान में, कलमकारी आंध्र प्रदेश में, बांदानी गुजरात में। कंसिडर द फॉलोइंग। थर्ड का आंसर है सी। केरला इज़ ए फेमस फॉर आइवरी प्रिंटिंग। इन द जोधपुर आइवरी बेंगोल आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, केरला में आइवरी पेंटिंग होती है और जोधपुर में भी बेंगल फेमस है। तो सी है। विच स्टेट इज स्पेशल टाइप ऑफ लेदर फुटवर्क नॉन मोजड़ी। तो मोजड़ी कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है, जयपुर जोधपुर में। मनोती आर्ट कहाँ है? बीकानेर में होती है, जो कि डेकोरेशन के लिए होती है। तिरुपति डोल कहाँ फेमस है? पता होना चाहिए। ये रेड सैंडलवुड से बने होते हैं और ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। तिरुपति किससे बने होते हैं? रेड सैंडलवुड से। फुलकरी वर्क कहाँ? फुलकरी वर्क पंजाब में। दिस एम्ब्रॉयडरी यूजेस वाइट थ्रेड। कौन सी एम्ब्रॉयडरी में वाइट थ्रेड यूज़ में लिया जाता है? चिकन करी में। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका। अब है यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये चेंज हो चुकी है, मतलब ये पुरानी लिस्ट है मेरे पास, जो कि मेरे पास है 2017 तक की है मेरे पास। ठीक है, इसके बाद भी और भी जुड़े हैं जो हम एज एन उसमें देखेंगे, इसमें करंट अफेयर में। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे अजंता केव को समझाओ, एलोरा केव को समझाओ, ताजमहल, आगरा फोर्ट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क, इसको समझाओ। ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, इसको समझाओ। फिर चर्चेज एंड द कॉन्वर्ट्स ऑफ गोवा, अभी ये दिया गया था पहले। फतेहपुर सीकरी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फिर एलिफेंटा केव इम्पोर्टेंट है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पद्दकल इन कर्नाटका। फिर है ग्रेट चोला टेम्पल, जो कि बृहदेश्वर टेम्पल या तंजावुर तमिलनाडु में है। फिर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इज सांची एंड मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में क्वेश्चन आया है। हुमायूं टॉम्ब के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में। एंड अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो या सबसे पहले इसमें किस तरह के मतलब बड़े क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट एक्रू टू ए साइट आफ्टर इट्स सिलेक्शन एज ए यूनेस्को हेरिटेज साइट। ठीक है, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अब हम इसको करेंगे डिस्कस। सबसे पहले है कि आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 10, जैसे क्राइटेरिया ऑफ द कल्चरल साइट। जो कल्चरल साइट होती हैं ये होती है रिप्रेजेंट ए मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमन क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, और एग्जिबिट द इम्पोर्टेंट ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज़ एंड डेवलपमेंट इन आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी एंड द मॉन्यूमेंट्स, bear a unique exceptional testimony of cultural tradition
building, architectural, technological, landscape which illustrate significant stage, human settlement, land use, culture, human interaction and artistic and literary work. क्राइटेरिया क्या होता है? एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी होती है ये, ठीक है। अगर नेचुरल साइट्स, अगर कल्चरल साइट को आपको अप्रोच करना है तो कुछ ऐसा कल्चर में आपने मास्टरपीस किया हो, टेक्नोलॉजिकली मॉन्यूमेंट्स आर्ट हो आपके पास, यूनिक एक्सेप्शनल टेस्टिमनी हो आपके पास, आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप हो, या फिर ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट कर सकते हो, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, एन आइडिया ऑफ द बिलीफ ऑफ आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क हो। अगला है नेचुरल। नेचुरल में आपने एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी है आपके पास में, एस्थेटिक इम्पोर्टेंट है, या फिर जियोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत डेवलपमेंट हो रहा हो, लैंड फॉर्म्स वगैरह, फिजियोलॉजिकल में भी ऐसा ही कुछ डेवलपमेंट हो। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होता है जैसे कि इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस में इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिटाट होती है इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं कल्चरल के और नेचुरल साइट के। अब लीगल स्टेटस कैसे मिलता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप, ये है जेनेवा कन्वेंशन की ट्रिटी, आर्टिकल 5 जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें दिया गया कि प्रोटेक्शन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स एंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। यहाँ पर जो है 1954 में रिलेवेंट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट था टू कमिट एनी एक्ट ऑफ द हॉस्टिलिटी डायरेक्टेड अगेंस्ट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वर्क which is considered the cultural and spiritual heritage, to use such object in support of military effort and to make such object to the reprisal. तो law of war protecting it is the article, protocol and the custom together with the other treaty including the Hague Convention भी है यहाँ पे, Hague Convention for the protection of cultural property, ठीक है, एंड इंटरनेशनल लॉ। तो हैग कन्वेंशन है, फिर जेनेवा कन्वेंशन है, ये दो हैं। अब जैसे हमें ये पता होना चाहिए 1983 यहाँ पे हमने अजंता, एलोरा, ताजमहल और आगरा फोर्ट, इन चारों को दिया था। फिर 1984 में हम सन टेम्पल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ द महाबलीपुरम, ठीक है, सन टेम्पल हो गया उड़ीसा में, फिर महाबलीपुरम और इनको दिया था हमने। फिर 1986 में हमने चर्च ऑफ द कॉन्वेंट ऑफ गोवा को दिया था, गोवा चर्च ऑफ कॉन्वेंट्स ऑफ द गोवा, एंड खजुराहो टेम्पल को भी 1986 में, फतेहपुर सीकरी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ द हम्पी। फिर 1987 में हमने एलिफेंटा केव को दिया था और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ द पद्दकल कर्नाटका एंड चोला टेम्पल को दिया था, ठीक है। फिर हमने 1989 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची, तो सांची को कब दिया था? 1989 में। 1993 में हुमायूं टॉम्ब को दिया था और कुतुब मीनार को दिया था। कब दिया था? 93 में हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार। 99 में हमने दार्जिलिंग हिमालय, ठीक है। फिर 2002 में हमने बोध गया को दिया था, बोध और गया को, ठीक है, बोध गया। 2003 में हमने भीमबेटका को दिया था, भीमबेटका को, और 2004 में हम आए थे शिवाजी छत्रपति विक्टोरिया टर्मिनस एंड चंपानेर, पावागढ़, गुजरात। फिर नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो थी, ये कब आई थी? नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में। 2007 में आई थी रेड फोर्ट आया था 2007 में। फिर 2008 में कलका शिमला रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश। 2010 में जंतर मंतर। 2013 में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आम्बेर, घाघरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, इन किलों को
2014 में रानी की वाव को, और 2016 में आर्कियोलॉजिकल ला कॉर्ब्यूसियर एंड नालंदा महाविहार को, 2017 में सिटी ऑफ अहमदाबाद को दिया था। और नेचुरल साइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर काजीरंगा है, फिर केवला देव है, फिर सुंदरबन है, नंदा देवी है और वैली ऑफ फ्लावर, वेस्टर्न घाट्स हैं, फिर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, फिर कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है ना, कंचनजंगा। तो ये तो नेचुरल साइट्स आ गए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? ब्रिंग द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द कंजर्वेशन, ब्रिंग द टूरिज़्म। क्या क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के इम्पोर्टेंट? एक तो है इंटरनेशनल, आप प्रिजर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या करोगे आप? टूरिज़्म को बढ़ावा दोगे। तीसरा आप यूनेस्को कैन प्रोवाइड फंड, यूनेस्को इसको क्या प्रोवाइड करता है? फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इनेबल द ग्लोबल प्रोजेक्ट, इसको एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बना देगा। और इनेबल द एक्सेस टू ग्लोबल प्रोजेक्ट, फैसिलिटेट द क्रिएटिंग पार्टनरशिप, मतलब PPP हो गया इसमें, ठीक है। अगला है फैसिलिटेट द क्रिएटिंग पार्टनरशिप हो गया, जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत आती है। ये किस में आती है? जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत में आ जाती है, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ प्रीलिम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इसके। जैसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट यूनेस्को साइट। तो अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है, बट बाघ केव को अभी तक हमने रखा ही नहीं है, तो बाघ केव नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स, ठीक है। तो इसमें हमने देखना है कि यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर है सन टेम्पल, यस। पट्टक्कल टेम्पल कर्नाटका, यस। एंड महाबोधि टेम्पल बोध गया, यस। अरेंज द फॉलोइंग साइट असेंडिंग ऑर्डर में बताना यूनेस्को में। तो थर्ड का आंसर आएगा, पहले ताजमहल को दिया गया था, फिर दिया गया था बृहदेश्वर टेम्पल को, फिर सांची को, लास्ट में कुतुब मीनार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पट्टक्कल टेम्पल आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। वो कहाँ है? कर्नाटका में। रॉक शेल्टर भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ऐरातेश्वर टेम्पल जो है तमिलनाडु में। जंतर मंतर राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया सेक्शन यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो 5th का आंसर आएगा सी। एक तो मास्टरपीस और क्रिएटिव जीनियस होना चाहिए। दूसरा आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग आर्किटेक्चर या टेक्नोलॉजिकल असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिल नाउ एनलिस्टेड एज ए यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो इसका आंसर है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, जिसको कि अभी ऐड किया गया था। अब इसके बाद जो चैप्टर है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, वो अभी करेंगे हम।